नमस्कार, पानीकट देखें अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल के लिए नजर डालेंगे पानीकट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला विधानसभा सत्र आज से शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और वे नई सरकार और विधानसभा के सभी सदस्यों के साथ एक टीम के रूप में काम करेंगे। श्रीनगर में विधानसभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि उन्हें सदन के सभी सदस्यों से पूर्ण सहयोग की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आप सभी के साथ मिलकर काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के पुनरुद्धार के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रिपरिषद ने भी एक प्रस्ताव पारित किया है जिसका मैंने भी समर्थन किया है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की सामूहिक इच्छा और आकांक्षाओं को दर्शाता है। एलजी ने कहा कि सदन के सभी सदस्यों ने धैर्यपूर्वक सुना है। मेरी सरकार जम्मू कश्मीर राज्य को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। एलजी ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए काम करेगी, जिसकी वार्षिक आर्थिक विकास दर 7% तक पहुंच गई है। हम रोजगार के नए अवसर पैदा करने और जम्मू कश्मीर की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि समृद्ध समाज बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रत्येक क्षेत्र के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखिए। The selection that you will of the people in the democratic process. The high turnout represents that traditionally could not participate fully because of the opposition minority sympathy to separatist sentiments indicate that the people of the democracy will continue to see electoral participation as a means to voice their concerns and aspirations. The successful completion of the electoral process marks an epoch in the history of Jammu and Kashmir. This gathering and the swearing of elected government in Jammu and Kashmir marks a moment of immense pride as it was not only strengthening the democratic fabric of our nation, but has also become a beacon of hope to all for a brighter and more inclusive future. My government is fully geared up to realize these hopes and fulfill these expectations. The aspiration for a return to the state of United Islam, Honorable Prime Minister on several occasions has already expressed his commitment to the same state, which has been a source of reassuring hope and reassurance for the people. The Council of Ministers of Jammu and Kashmir has recently passed a unanimous resolution calling for the immediate restoration of the statehood. This resolution reflects the collective will of the elected representatives, equally the aspirations of the people for the unity, safety, and constitutional guarantees available to the state. It is the discipline of the protection of the state reposed by the people of Jammu and Kashmir in our democratic institutions. In the meantime, I urge all stakeholders to work together as one team and extend full support to my government in fulfilling the hopes and aspirations of the people. My government is fully committed to implementing the promises made to the people for further political empowerment and for creating an environment for employment, sustainable development, social inclusiveness, and expansion of the economy for enhancing the overall quality of life. It is work implemented on the three principles of economy, policy, and unity. That is, state, our future, we commit ourselves to this balance for a better and brighter future for all. Jammu and Kashmir is growing at the next annual growth, the rate of around 7%. My government is coming. सत्र के शुरू होने के बाद विधायक जावेद अहमद दार ने स्पीकर के लिए अब्दुल रहीम राथर के नाम का प्रस्ताव सदन में रखा और ध्वनि मत से अब्दुल रहीम राथर को जम्मू कश्मीर विधानसभा स्पीकर चुना गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर अब्दुल रहीम राथर को बधाई दी। सियासत करना, इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले से अपना मोहर नहीं लगाया।
अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरह बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस की तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंच तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमराज को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही पीडीपी के विधायक वहीद परा ने सदन में अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में प्रस्ताव रखा, जिसका बीजेपी एमएलए शगुन परिहार ने कड़े शब्दों में निंदा की। शगुन परिहार ने कहा कि पीडीपी जो पहले से जहर उगलती आई है, वही जहर उन्होंने आज की असेंबली में उगलने की कोशिश की। उसी तरह से जैसे वे पहले जनता को गुमराह करते थे, आज भी उन्होंने हमारे अवाम को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हमने उनकी कड़े शब्दों में निंदा की। बीजेपी एमएलए ने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर के अवाम की भले की बात करनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के मसलों को आगे लेकर बढ़ना चाहिए, चाहे वो सड़क का मसला हो, बिजली या पानी का मसला हो। हमें इन मसलों को लेकर बात करनी चाहिए, ना कि जनता को गुमराह करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी, पीडीपी जो पहले से जहर उगलती आई थी वही जहर उगलने का प्रदर्शन आज भी असेंबली में उन्होंने किया। उसी तरह से जिस तरह से वो पहले जनता को गुमराह करते थे, आज भी उन्होंने हमारे अवाम को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हमने उनकी कड़े शब्दों में निंदा की। और मैं यही कहूंगी, हमें जम्मू कश्मीर की अवाम के भले के बारे में सोचना चाहिए, जम्मू कश्मीर के मसलों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो सड़क का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे स्कूल कॉलेज का मसला हो। हमें उन मसलों को लेकर काम करना चाहिए, ना कि जनता को गुमराह करने की कोशिश करनी चाहिए। विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही पीडीपी के विधायक वहीद परा ने सदन में अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में प्रस्ताव रखा, जिसका भाजपा के विधायकों ने जमकर विरोध किया और पार्टी सीटों से खड़े होकर जमकर हंगामा किया। स्पीकर के समझने के बाद जब भाजपा के विधायकों ने हंगामा जारी रखा तो स्पीकर ने सदन को 10 मिनट के बाद स्थगित किया। जैसे हमने पीडीपी के 3 मेंबरों ने रेजोल्यूशन सबमिट किया कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ वो कश्मीर की आवाम के हक में नहीं था, और उमर साहब ने खुद कहा लोग खुश नहीं हैं, तो वही बात हमने लिख के रेजोल्यूशन में लाई। वी एक्सपेक्ट दे विल सपोर्ट अस, वे सरप्राइज कि एमसी के लीडर हाउस लीडर भी है और उन्होंने हमारे रेजोल्यूशन के खिलाफ खुद बोला। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वो सोचेंगे और सोच रहे कल परसों 4 दिन में उस रेजोल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे, इसको एडमिट करेंगे एंड दे विल नॉट रिजेक्ट दिस रेजोल्यूशन बिकॉज दिस इज अबाउट द लेगेसी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, इट्स अबाउट द लेगेसी ऑफ जम्मू महाराजा ऑल्सो। हम जो मांग रहे हैं प्रिस्टीन फॉर्म ऑफ आर्टिकल 370 शुड बी रेस्टोर्ड, स्पेशल स्टेटस शुड बी रेस्टोर्ड एंड 1947 में जो जम्मू कश्मीर की स्टेट एग्जिस्ट जैसे होती थी वैसे ही वापस होनी चाहिए। शुक्रिया। मुझे लगता है जो अभी फर्स्ट टाइम इलेक्ट होके आए उनका फर्स्ट दिन था, फर्स्ट मिनट था और फर्स्ट सेकंड था, और जो मर्यादा होती है सदन की उसको उन्होंने लांगा, इसलिए भाजपा ने उसको अपोज किया, रिजेक्ट किया। बड़ी बदकिस्मती है, पीडीपी जो पहले सेकंड में ही जहर उगलती है, आज उसका परिचय उन्होंने सदन में भी दिया। मुझे बड़ा अफसोस है
कि अभी भी वो सुधरे नहीं, कम से कम इस चुनाव के बाद उनको अपनी तस्वीर जो सामने आई है उससे सुधरना चाहिए और ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर चुनाव आज पहले दिन अपोजिशन दिखाई है, तो आने वाले 4 बीजेपी हमेशा अपोजिशन करेगी। जो भी इस प्रकार के बिल्स, रेजोल्यूशन या जो भी उनका मंसूबा जिसमें थोड़ी सी भी बू आएगी राष्ट्रीयता की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 28 योद्धा किसी भी कदम पे पीछे नहीं रहे। देखिए, ऐसा है कि कोई भी चीज जो है एक मर्यादा होती है। आप शादी वाले घर में जाते हो तो बधाई देते हो, तो आज बधाई का जो संदेश था उसमें तो कोई रेजोल्यूशन लाना जो है वो मर्यादा के खिलाफ है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिए हैं। 26.6% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और कोई भी बात जो देश के खिलाफ होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जो है उसके शेर जो डट के मुकाबला करेंगे। हाँ, हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ शांति हो और उन्नति हो, तरक्की हो। उसके लिए हमारा हर एक प्रयास, हम सरकार के भी साथ रहेंगे और देश के भी साथ रहेंगे। कुछ रेजोल्यूशन जिसका कंटेंट पता नहीं, ऐसा रेजोल्यूशन जो रूल्स में या प्रोसीजर में या किसी प्रावधान में जिसका कोई भी इसकी जिसे कहते हैं जवाबी यूनिट कोई नहीं, उसकी लीगल सिग्निफिकेंस कोई नहीं, हम उसको मैटर किसी ना बनाए। वो कुछ पढ़ना चाहते थे, ऑब्जेक्ट कि आप एजेंडा से बिना आप रेजोल्यूशन कोई भी नहीं ला। रेजोल्यूशन क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल वक्त होना से ब्रेक का, जल्द होते हैं वापिस। सीखेंगे कि अनार का जूस कैसे बनता है। 6 अनार लीजिए, मिक्सर में डालिए, फिर हो गया तैयार। ये है एग्जैक्टली, फ्रेश चुनिंदा अनार के जूस से बना है रियल पोमेग्रेनेट, ओनली रियल फ्रूट गुडनेस, नो एडेड प्रिजर्वेटिव। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक, फ्रेश लॉक्स। गोल्डी मसाले जहाँ जाए टेस्टी बनाए। ब्रेक के बाद सबका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। वहीं पीडीपी के विधायक वही दुखपरा द्वारा सदन में अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में और रखे गए प्रस्ताव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों का क्या कहना था और इस सत्र को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने क्या कहा, आइए वो भी देखिए। साथ इंसाफ हुआ और बड़ी इत्मीनान की बात है कि कंसेंसस से हुआ, इत्तेफाक राय से हुआ। कहीं बस किसी ने भी, हर एक ने उनके नाम की तारीफ की। अपोजिशन बेंच हो, जो हिजबी इख्तिलाफ हो, हिजबीदार हो, तो ये सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है अच्छे इसकी शुरुआत है। उसके बाद आज कोई बिजनेस नहीं था, आज हाउस का कोई बिजनेस नहीं था, माय सिवाय स्पीकर के इंतखाब के और एलजी साहब के जो खिताब था उनका हाउस, उसके बाद बाकी सारे कोई उसी शुक्रिया मैं ही सब हर एक ने शुक्रिया उनका किया। तो और बाकी कोई मामला था नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी। ये जानबूझ से कुछ लोग हवा क्रिएट करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा ये धोखा देना चाहिए, दोबारा गेम्स खेलना चाहते हैं। जब एक मेंबर को पता है कि उसके ऐसे किसी बिल लाने का कोई ना ही रूल है ना प्रोसीजर है, उसके बाद भी बिल लाते हैं तो गैलरी को प्ले करते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली, जब ऐसा कोई इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन आना है तो गवर्नमेंट से आएगा और गवर्नर एड्रेस के बाद आएगा। तो ये सारा जो हो रहा है ये जस्ट एक अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस, जो पॉलिटिकल ग्राउंड लोगों ने खोया है। हमारा 370 पीडीपी ने खत्म किया, उस जमात के साथ हुकूमत बनाई जो अंदर जाके उन्हीं को खोखला किया। ड्रामा से काम नहीं चलेगा। पहले दिन काम कुछ बिजनेस को तोड़ था और आगे रेजोल्यूशन आएंगी, आगे कार्रवाइयां होंगी, हम उसको कोई चीज करेंगे। आज सिर्फ स्पीकर साहब का इलेक्शन था और स्पीकर साहब के इलेक्शन के बाद जो था तो वो गवर्नर स्टेटस था। तो आपको पता है पीडीपी ये ड्रामा करने में मशहूर है
और जो आज हम तबाही के दहाने पे पहुंचे हैं, हमारा 370 खत्म हुआ है, हमारा स्टेटहुड खत्म हुआ है। कुछ मेंबरों ने जानबूझ के मीडिया कंजप्शन के लिए कुछ हंगामा किया, जो कि हम सलाह दे रहे हैं उनको कि मत कीजिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से 2019 हुआ है, उन्हीं की वजह से जम्मू कश्मीर के जो हुकूक है वो छीने गए। गवर्नमेंट कमिटेड है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है, जिस तरह आपने मंशूर में लिखा है। परसों इसके ऊपर डिस्कशन होगा, परसों इस पर बात होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो मुबारकबाद की बात है, कि गवर्नर एड्रेस में रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की बात हुई है, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे मैं उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देता हूँ और पूरी पार्टी को कि एलजी साहब के मुंह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज के रेस्टोरेशन की बात। देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि आज 6 साल के बाद दोबारा असेंबली कयाम में आई और 6 साल से कोई डेमोक्रेटिक सेटअप सारा रुका हुआ था। लोगों ने वोट डाला और एक नई सरकार को एक नई उम्मीदों के साथ ये असेंबली कयाम में आई है। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आपने देखा कि 6 साल में लोगों ने किस तरीके से जख्म बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, एलजी का एडमिनिस्ट्रेशन, बड़े लोग परेशान थे। आज लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ वोट डाला है और लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन है। ये एक प्रॉपर एक हाईएस्ट फोरम है जहां लोगों के इश्यूज को हम रेज करेंगे। हमारे बिजली का मामला, हमारे हॉर्टिकल्चर का मामला, हमारे एजुकेशन, हेल्थ का मामला, हम समझते हैं पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ डेवलपमेंट के इश्यूज है, इस पर हमें एकजुट होकर होना चाहिए। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, वी मस्ट बी वेरी सीरियस, वी शुड नॉट इंडल्ज इन पॉलिटिक्स। नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एसएमएस अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने टीआरसी के करीब संडे मार्केट में हुए ग्रेनेड हमले में घायल लोगों का हालचाल पूछा। इस दौरान उन्होंने घायलों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी बातचीत की और घायलों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कश्मीर घाटी में हो रहे आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इन हमलों को कायराना बताते हुए कहा कि ये आतंकी संगठनों के सरगनाओं की बौखलाहट है। तरुण चुग ने कहा कि इन हमलों का सुरक्षा बल आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और इन घटनाओं में शामिल हर आतंकी का सफाया किया जाएगा। तरुण चुग ने कहा कि आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीनगर में जो घटनाएं हुई हैं वो निंदनीय है और कायरतापूर्ण कदम है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां हर आतंकवादी मंसूबे को, उनके षड्यंत्र को लगातार कुचल रही है। ये भी कुचला जाएगा। एक दिन पहले ही एक बड़े आतंकी कमांडर को हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कब्र में पहुंचाया है और अब जिनके हाथों में हथियार हैं, हमारे नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, उनको भी जल्द ही कब्र में पहुंचाया जाएगा। आतंकी सरगनाओं की कायरतापूर्ण ये घटनाएं करना उनकी बौखलाहट बता रही है। आतंक का सफाया हो चुका है। जिसने भी ऐसा दुस्साहस किया उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा दी जाएगी। आतंक के फन को कुचल दिया जाएगा। श्रीनगर में जो घटनाएं हुई हैं वो निंदित। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा श्रीनगर से जम्मू पहुंचे। जम्मू पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सत शर्मा ने बताया कि जिस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ है, इससे साफ होता है कि लोगों के दिलों में भाजपा के लिए कितना प्यार है। उन्होंने पार्टी की बतौर प्रदेश अध्यक्ष दोबारा सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया। हजारों की संख्या में लोग और गाड़ियां ये अपने आप में बताती है भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में प्यार है। और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का माननीय जेपी नड्डा जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे पार्टी की सेवा करने का पुनः जो है वो मौका मिला है। इन शब्दों के साथ मैं सारी की सारी जनता का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जो आज भारी संख्या में मुझे रिसीव करने के लिए यहाँ पर आए। शिवसेना यूटीवी की जम्मू कश्मीर इकाई ने सरकार से जम्मू को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की है।
अपनी इस मांग को लेकर शिवसेना यूटीपी ने जम्मू में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना यूटीपी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहनी ने कहा कि पिछले 70 वर्षों से लगातार जम्मू के साथ भेदभाव का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा, अब तक तमाम सियासी दलों ने जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर अपनी सियासी रोटियां सेकी हैं। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से विधानसभा के इसी सत्र में जम्मू को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की। देखिए, आज जो हमारा प्रदर्शन है वो जम्मू को स्थायी राजधानी, एक परमानेंट कैपिटल बनाने की मांग को लेकर है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर के पिछले 70 सालों के इतिहास के अंदर जम्मू के साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ। जम्मू हमेशा जो है वो भेदभाव का शिकार रहा, नजरअंदाज होने का शिकार रहा। जम्मू को लेकर पार्टियों ने जो है अपनी राजनीतिक स्वार्थ साधा, राजनीतिक रोटियां सेकी, यहाँ से ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की, मगर उन पार्टियों ने भी कभी जम्मू का हित नहीं सोचा। आज हमारी मांग है कि आज विधानसभा का सत्र भी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी से हमारी मांग है कि वह जम्मू को इसी सत्र के अंदर स्थायी राजधानी, परमानेंट कैपिटल ऑफ J&K घोषित करें। देखिए, इसके पीछे कोई राजनीतिक नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। जम्मू को अगर आप वैसे भी देखो तो यहाँ प्रशासनिक कामकाज मौसम की मार नहीं होती, 365 दिन तक जारी रह सकता है। सचिवालय हर दिन खुल सकता है। आतंकवाद की दृष्टि से भी जम्मू जो है वो कश्मीर से यहाँ पर जो है शांति प्रिय इलाका है जम्मू। तो सरकार का काम सुचारू रूप से चले, जनता जो महरूम रही है अपने लोकतांत्रिक अधिकार। नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को लेकर विरोध कर रहे थे जिसमें उन्होंने आतंकियों को मारने के बजाय पकड़ने की बात कही। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान की कड़ी आलोचना की। देखो, हमारा विरोध है आज का, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ है। जो उनकी स्टेटमेंट है उनके खिलाफ है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए। जो आतंकवादी हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारे निर्दोष नागरिकों का खून बहा रहे हैं, ऐसे आतंकवादियों को मारा न जाए और क्या करना चाहिए, क्या उनकी आरती करनी चाहिए। ये बात हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हम आपके चैनल के माध्यम से। जम्मू में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में भी एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो के डीआईजी विकास गुप्ता मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने को लेकर चर्चा की गई। अवेयरनेस विथ एज यूजुअल आप सभी को अवेयर होंगे कि हमारे जो है फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी बर्थ डेट से कोइंसाइड करते हुए जो है हम हमेशा अक्टूबर के लास्ट वीक में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अवेयरनेस वीक से हमारा ये मोटो रहता है कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी उनमें एक मुहिम चलाई जाए कि करप्शन के अगेंस्ट लोगों को जागरूक कराया जाए ताकि वो अपनी वाइफ फेस करें जहाँ पे उनको करप्ट प्रैक्टिसेस नजर आती हैं, ताकि हमारा जो है सोसाइटी एक करप्शन फ्री सोसाइटी बने, लोगों को उनके राइट्स मिले और बिना किसी दिक्कत के। थैंक यू सर। इसके लिए मैं ज़्यादातर जो है ना बहुत कंपोनेंट डिपेंड करता है सोसाइटी हमारी कैसी है। हम बहुत मोटिवेट करते हैं सोसाइटी को कि आप हमारे पास कंप्लेंट चाहिए जहाँ आपको दिखता करप्शन प्रैक्टिसेस दिखती हैं, करप्शन दिखते आप हमारे इंप्लीमेंट कीजिए। लेकिन जब तक जो हमारी पब्लिक, हमारे सिटीजन जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारी तरफ से जितनी मर्जी हमारी कोशिश होगी। हमारा जो है हर गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल पालक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।